students, today we are also going to see a next chapter, that is the next poem, we can say, the Champa flower. There is no homework on this poem, so this is just for your knowledge, and you have to watch this video only. The Champa flower. Okay, there is a kind of flower that is known as Champa, and as you can see in this picture, these types they look. Okay, so what is the poem all about? We are going to see. Supposing I became a champa flower just for a fun, and grew on the branch high up that tree, and shook in a wind with laughter, and danced upon newly budded leaves. Who would you know me, mother? How would you know me, mother? You would call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quiet. I should slyly open my petals and watch you at your work. When after you bath with wet spread on your shoulder, you walk through the shadow of champa tree to the little court where you say your prayers. You would notice the scent of flowers but not know that it came from me. When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, a tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling I should fling my wee little shadow on the page of your book just where you were reading. But would you guess that it was my tiny shadow of your little child? When in the evening you went to the cowshed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on the earth again and must your own baby once more, and beg you to tell me a story where you have been a you naughty child. I won't tell you, mother. That's what that's what you and I would say then. And this poem is written by Rabindra Tagore. Okay, this was the way of reading the poem, and now I am going to explain it. Supposing I became a champa flower just for a fun, Rabindranath Tagore is supposing that he became the champa flower just for a fun, and he is dedicating this poem to his mother, and he is playing with his mother. He is thinking that, and he is supposing that he became a champa flower. वो एक चंपा flower बन चुके हैं, and grew on a branch of high up that tree. एक ट्री के ऊपर, एक हाई ब्रांच के ऊपर, टहनी के ऊपर वो चंपा फ्लावर बन गए. फॉर एग्जाम्पल वो सपोज कर रहे हैं. एंड शुक इट विंड विथ लाफ्टर, और वो जोर जोर से अपनी वो जो चंपा फ्लावर है वो जोर जोर से हिल रही है क्योंकि वो लाफ्टर कर रही है, हंस रही है. एंड डांस अपॉन न्यूली बडेड लीव्स, और जो लीव्स है, जो नई नई लीव्स आई है उनके ऊपर वो डांस कर रही हैं. वुड यू नो मी मदर, तो मम्मा मम्मा आप मुझे पहचान पाओगी. वुड यू कॉल मी बेबी वेयर आर यू, आप मुझे ढूंढोगी. आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, और मैं आपको चुपके से, मैं क्योंकि मैं तो फूल चंपा फ्लावर बन चुका हूँ, तो मैं आपको चुपके से देख के हंसूंगा और चुपचाप बैठा रहूंगा. एंड कीप क्वाइट एंड क्वाइट. आई शुड स्लाइली ओपन माई पेटल्स, मैं आई विल स्लोली ओपन माई पेटल्स एंड सी वॉट यू आर डूइंग, एंड वॉच वॉट यू आर डूइंग, वॉच योर वर्क. When after your bath, जब आप नहा के निकलोगी, with wet hair spread on your shoulder, अपने गीले बालों के साथ, you walked through the shadow of the champa tree, और चंपा ट्री के सामने से होते हुए, to a little court where you say your prayers, क्योंकि जब वो लिटिल छोटा सा मंदिर वो चंपा फ्लावर के सामने ही है, तो वहां से जब आप गुजरोगी, यू वुड नोटिस अ सेंट ऑफ फ्लावर, जो आप छोटा सा मतलब
So what happened then? टू द लिटिल कोर्ट वेर यू से योर प्रेयर्स, जब आप अपने मंदिर के पास पहुंचोगी चंपा फ्लावर से होते हुए, तो वो आप खुशबू महसूस करोगी चंपा फ्लावर से आते हुए, बट नॉट नो दैट इट केम फ्रॉम मी, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा द चंपा फ्लावर स्मेल्स इज कमिंग फ्रॉम मी बिकॉज योर चाइल्ड इज बिकमिंग ए चंपा फ्लावर, क्योंकि मैं चंपा फ्लावर बन चुका हूँ। तो आपको इतना महसूस होगा कि खुशबू आ रही है, लेकिन वो मुझसे आ रही है, ये आपको नहीं महसूस होगा। when after a mid when the when after the midday meal you sat at the window reading रामायण, जब आप दोपहर में खाना खाने के बाद जब आप रामायण पढ़ने बैठती होंगी विंडो के पास, द ट्री शैडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, तो ट्री का शैडो जो होगा वो आपके बालों पे और आपकी गोद में पड़ेगा। आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शैडो, और जो मेरी फ्लावर एज अ फ्लावर जो मेरी छोटी सी शैडो होगी उस ट्री के अंदर, वो भी आप पे पड़ेगी। ऑन द पेज यू योर बुक, और मेरी शैडो कहाँ पड़ेगी? आपके बुक के पेज पे, आपके रामायण की किताब है जो उसके पेज पे, जस्ट वेर यू वेर रीडिंग, और जहाँ से आप पढ़ रही होगी वहीं पे मेरी शैडो पड़ेगी। बट वुड यू गेस दैट इट वॉज द टाइनी शैडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, लेकिन आपको पता चलेगा क्या कि वो जो छोटा सा शैडो था वो मेरे बच्चे का था, मेरे बेबी का था। वेन इन द इवनिंग यू वेंट टू द काउ शेड, एंड जब इवनिंग में आप काउ शेड में जाओगी गायों के पास, विद द लाइटेड लैम्प इन योर हैंड, आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन द अर्थ अगेन, और जब आप शाम में काउ शेड में जाओगी लैम्प लेके, तब मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, मतलब मैं पेड़ पे से गिर जाऊंगा जमीन पे, और आपका बेबी फिर से एक बार आपका बेबी बन जाऊंगा, क्योंकि शाम हो चुकी है। एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और फिर से आपको स्टोरी सुनाने की जिद करूंगा आपसे, या फिर स्टोरी सुनाने के लिए कहूंगा। वेयर यू हैव बीन यू नॉटी चाइल्ड, एंड यू विल आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि आप कहाँ थे नॉटी चाइल्ड। आई वोंट टेल यू मदर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं चंपा फ्लावर बन गया था। दैट्स वॉट यू एंड आई वुड से देन, और हम दोनों के बीच में ये बात होगी उसके बाद। सो दिस वॉज द क्यूट पोयम दैट इज द चंपा फ्लावर। ओके, in this poem, Rabindranath Tagore is imagining that he has become the champa flower and he is playing with his mother. What he will do when he becomes the champa flower. Okay, this is totally imaginary. So there is no homework on this poem. Only you have to watch this video. Okay, thank you.